تو سب سے پہلے میں عملی افراد سے شروع کر رہا ہوں. عملی افراد، یہ سب سے بڑا جوش و خروش آپ میں رہے گا اور آپ کی توانائی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا. آپ اپنے ذاتی اور پیشہ ورانہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے بڑی کوشش کر رہے ہیں اور کامیاب بھی ہوتے نظر آتے ہیں. تاہم اس ہفتے بغیر سوچے سمجھے اور جوش و خروش ماں پر کوئی فیصلہ نہ کریں. اس ہفتہ کے وسط میں کوئی مالی معاملہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گا. ذاتی تعلقات میں صبر و تحمل سے اور بڑی سوجھ بوجھ سے کام لیتے جائیں. دوسرا برج سوری حضرات، مئی میں پیدا ہونے والے لوگ. سوری حضرات، اس ہفتے آپ کے معمولات، آپ کے جو حالات ہیں ان میں پائیداری پائی جاتی ہے اور بڑا آپ کو یہ ہفتہ جو ہے اس پائیداری کی وجہ سے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا. آپ اس ہفتے طویل المیعاد مقاصد کو بھرپور توجہ دے رہے ہیں اور ایسے مواقع آپ کو ملنے والے ہیں جس سے آپ کی مالی پوزیشن بہت مضبوط ہو جائے گی. فیملی آپ کے سکون کا باعث بنے گی اور کوئی قریبی دوست آپ کا وہ بھی آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا. ہفتہ کے آخر میں آپ اپنا بھی کچھ خیال رکھیں اور آرام و سکون حاصل کرنے کی کوشش کریں. جوزی حضرات، جون میں پیدا ہونے والے، تو آپ لوگوں کے یہ جو ہفتہ ہے، اس ہفتے میں آپ دوسروں سے تبادلے خیالات اور میل ملاپ کرتے نظر آتے ہیں. آپ کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا. معاشرتی میل ملاپ سے آپ کو بہت سارے مواقع ملنے والے ہیں اور کئی نئے دروازے کھل جائیں گے. تاہم ضرورت سے زیادہ ذمہ داری قبول نہ کریں. اس ہفتے جوزی حضرات آخر میں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا وقت گزارتے نظر آتے ہیں. ہفتہ کے آخر میں اور آپ اپنے کسی جو آپ کی ہابی ہے یا آپ کا جو پسندیدہ شغل ہے، ہفتہ کے آخر میں آپ اپنے اس شغل میں بڑے مصروف نظر آ رہے ہیں. آئیے جی چوتھے برج کی طرف. سرطانی حضرات، جولائی میں پیدا ہونے والے سرطانی حضرات، اس ہفتے زیادہ سے زیادہ اپنے اندر توازن پیدا کریں. جذبات میں، سوچ میں توازن ہونا چاہیے. کام کے لحاظ سے آپ پر ذہنی دباؤ رہے گا لیکن آپ صبر و تحمل سے کام لیں گے. حالات کو تناظر میں سمجھنے کے لیے آپ اپنی فیملی سے بھی حمایت حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے کسی تجربہ کار استاد سے بھی رجوع کر سکتے ہیں جو آپ کو فیملی کے بارے میں سب کچھ سمجھائے. آخر میں آپ ہفتہ کے آخر میں ایسی سرگرمی میں حصہ لیں جس سے آپ کو سکون ملے. آئیے جی اگلا برج جو ہے وہ آ گیا ہے اپنا اصلی حضرات کے بارے میں. اصلی حضرات یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں اگست میں. اس ہفتہ آپ کی جو صلاحیتیں ہیں ان کی بڑی نشو و نما ہو رہی ہے اور اس وجہ سے آپ کو شناخت بھی حاصل ہوگی. لوگ آپ کو پہچانیں گے. پیشہ ورانہ طور پر آپ کی جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں وہ آپ کے کام آئیں گی اور وہ مزید بیدار ہوں گے، وہ مزید روشن ہوں گی. آپ کی قائدانہ صلاحیتیں تعمیرانہ مشاورت کو کھلے دل دماغ سے قبول کریں. اس ہفتے آپ کی فیملی آپ کی توجہ چاہتی ہے. ہفتہ کے آخر میں ایک حیران کن صورتحال پیدا ہوگی جس سے آپ کی خود اعتمادی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا. آئیے اگلے برج کی طرف، چھٹے برج کی طرف
सुमली हजरात की तरफ, संभर में पैदा होने वाले लोगों की तरफ। तो सुमली हजरात इस हफ्ता आप अपनी अहलियत, अपनी कारकर्दगी और अपनी तंजीम को मजीद तवज्जो देंगे। काम के लिहाज से नए मौके मिलने का कभी इम्कान है। अब आपकी अपनी सेहत जो है उसको बहुत ज्यादा तवज्जो देनी होगी। आप उतने ही काम करें जितने काम के लिए आपकी तवानाई आपको इजाजत देती है। काम के लिहाज से किसी अच्छे मौके को हाथ से न जाने दें। मौके आ सकते हैं आप। आइए मैं 7वें बुरे की तरफ आ रहा हूँ। मिजानी अफराद, अक्टूबर में पैदा होने वाले लोग। तो मिजानी अफराद अपने अजीज़ व अक़ारिब को तवज्जो दें। अगर झगड़ा पैदा होते हैं, ऐसा कोई झगड़े का इम्कान नजर आता है, तो तू मैं से बचें। घरेलू जिंदगी आपके लिए बड़ी अहमियत की इख्तियार कर चुकी है, लेकिन इससे भी ज्यादा जो चीज आपके लिए मुंतज़िर है वो आपकी तख्लीकी सलाहियतें हैं। हफ्ता के आखिर में आपकी तख्लीकी सलाहियतें मजीद बेदार हो रही हैं और आपको उन्हें बरूविकार लाना चाहिए। औलाद से मुतल्लिक आपके औलाद से बारे में ये मामलात आपके हक में हैं और घरेलू सरगर्मियों को आप थोड़ा सा वक्त ज्यादा दें। तख्लीकी सलाहियतें आपकी बेदार होती चली जा रही हैं, दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा होती जाएंगी। चुनांचे इनसे इन्हें बरूकार लाएं और इनसे भरपूर फायदा उठाएं। आइए जी अकरबी हजरात की तरफ आते हैं। पैदा होते हैं नवंबर में। नाम में इनका बुरी का अकरब है और अकरबी हजरात आपके जो अजीज़ व अक़ारिब है, आप उनकी बहुत ज्यादा अहमियत बढ़ जाएगी। उनसे तलकात मजीद बढ़ाएं, माजी को भूलें। लेकिन सबसे ज्यादा जो अहमियत वाली बात आपके लिए अब शुरू हो रही है वो है आपकी जायदाद और आपका घर। जायदाद के लिहाज से अपने मामलात को अच्छी तरह समझ लें। अगर वो जज्बात के जायदाद से मुतल्लिक मामला सार उठाएंगे तो आप इस काबिल हो कि आप उनसे निपट सकें। इसलिए कह रहा हूं कि आप उनको मजीद समझने की कोशिश करें। अकबरी हजरात के बाद कौसी हजरात की बारी आ रही है। ये लोग पैदा होते हैं दिसंबर में। तो कौसी हजरात हफ्ता के पहले 2 दिनों में आपके लिए ये 2 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। हफ्ते के पहले 2 दिन, क्योंकि चांद आपके अपने घर में होगा, जिसकी वजह से आपके तबीयत में बड़ी उठान और खुदमादी पैदा होगी और आप बड़े अच्छे मूड में रहेंगे। हफ्ता के वस्त में माली मामलात के बारे में आप सोचेंगे। माली मामलात के बारे में सोचिए और उनको मजीद इजाफा करने का जो है प्लान करें। हफ्ता के वक्त में आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको बहुत ज्यादा अहमियत हासिल रहेगी। इन करीबी रिश्तेदारों की वजह से पिछले कई महीने पहले जो मामलात हो चुके हैं वो भी आप ज़हन में रख लें। आप अपनी तरफ से अपने करीबी रिश्तेदारों को मजीद समझने की कोशिश करें। कोई करीबी रिश्तेदार आपके करीब होने की भी कोशिश कर सकता है। आइए जी अगले बुरे की तरफ। जद्दी हजरात पैदा होते हैं जनवरी में। तो हफ्ता के पहले 2 दिन जो है वो आपके जॉब के लिहाज से बहुत अच्छे साबित होंगे और आप ये भी ध्यान में रखिए कि पहले 2 दिन में आपके पस पर्दा
आपको जो बदखा है उनको भी समझने की कोशिश करें। वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है आप पर कोई इल्जाम लगाया जाए। आप बड़े होशियार रहें, हर एक मामले को सही तरह, अच्छी तरह, गहरी तरीके से समझने की कोशिश करें। और इसके साथ साथ जॉब से जो मामलात आपके वो अनकरीब, बहुत ही अनकरीब जॉब के लिहाज से आपके जो मामलात हैं वो हक में बड़ी खुशकिस्मत साबित होने लगेंगे। इस वजह से आप पर उम्मीद रहें। आइए जी अगले बुरे की तरफ आता हूँ। जो लोग फरवरी में पैदा होते हैं, दलवी हजरात, आपका यह हफ्ता सोशल लाइफ से शुरू होगा। दोस्त, अब आपसे रब्ता रखिए। आपका कोई मसला हल हो सकता है। काम के लिहाज से हालात हक में है, आपको मजीद मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्त, अब आपका कोई मसला हल कर सकते हैं। काम के लिहाज से हालात मजीद मेहनत, मजीद दिलचस्पी का तकाजा कर रहे हैं। वो आप पहले ही अपनी तरफ से जरूर ज्यादा वक्त दे रहे हैं। आइए जी आखिरी बुरे की तरफ पहुंच चुका हूँ। भूती अफराद। हाँ जी, मैं दलवी हजरात के एक दो बातें भूल गया। वो उनके माली मामलात भी ठीक नजर आते हैं। और दूसरा ये है कि आपको अपने सेहत का भी पहले से ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। आइए अगले आखिरी बुरे की तरफ। भूती अफराद। आपकी जो सलाहियतें हैं, जिनको लोग शनाख्त कर चुके हैं, उनको मजीद सराहा जाएगा। और आपकी इन सलाहियतों की वजह से आपको मजीद कामयाबी नजर आती है। आला अफरान से बहरहाल आला अफरान से मुताद रवैया अख्तियार किए रखें। दोस्त, अब आपके साथ आपका जो वक्त है वो अच्छा गुजरता नजर आता है। हफ्ता के आखिर में आपको फैमिली के जो मामलात हैं उनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। अचानक कोई कदम ना उठाएं। तो इसके साथ ही हमले अफराद से लेकर